Energizing moment, reminding us of candles of faith dazzling through the dark nights and seasonal melodies that generate divine feelings to serve the nation and to serve one and all. Beautiful hues of bright colors and mesmerizing fragrance of flowers, feelings of respect, we would like to welcome our guest with flowers, Pag and Upanna, following the tradition of Mewar, which believes that our guests are our God. So to welcome our esteemed guest, I would request Professor Kanal Shiv Singh Sarvaiya, sir, Honorable Vice Chancellor of Janardhan Rai Nagar, Rajasthan Vidyapeeth University, to welcome our chief guest, Maharaj Kumar Lakshya Singh Mewar, group of hotels. In fact, he is the heart and soul of our city. Welcome, sir. Thank you. In continuation, I would request my Honorable Vice Chancellor, sir, to also welcome the President of this inaugural program, Dr. Rajendra Singh Ji, popularly known as the Waterman of India. Magsaysay Award winner, he is a renowned water conservationist and environmentalist. He is also the chairman of Tarun Bharat Sun and the chairman of People's Water Commission on Drought and Flood. I would request Dr. Kaushal Nanda, sir, Pete's Civil Rajasthan Vidyapeeth, to also welcome our honorable guest, Dr. Rajendra Singh Ji. It's an honor to have him here with us today. Extending a warm welcome in a traditional way. The culture of India. I request Honorable Vice Chancellor, sir, to welcome our guest of honor, Padam Shri Shriyut Kartikeya Vikram Sarabhai, founder and director, CEE, and the chairman of Amarnath Sarabhai Enterprises. A warm welcome, sir. I would again request Honorable Vice Chancellor, sir, to welcome our guest of honor, Dr. Ashutosh Tiwari, Director of the Institute of Advanced Material, Sweden. I would request Honorable Vice Chancellor, sir, to welcome the Chancellor of our university, Professor Balwant Rai Jani, sir. Thank you, sir. Warmth and flowers once again. And for this, to welcome our chief guest, Maharaj Kumar Lakshya Singh Mewar, I would request Professor G.M. Mehta, sir, Dean PG, and Dr. Yuvraj Singh Rathore, welcome once again. To welcome the President of this inaugural ceremony, Dr. Rajendra Singh Ji, the Waterman of India, I would request Dr. Kalamulek, Dean Law College, and Dr. Paras Jain, Controller of Examination, to please. Subhash Bora, Assistant Registrar, Panchayat Unit, and Dr. Chandresh Chakrahi. I would request Dr. Yuvraj Singh Rathore, Organizing Secretary of the World Water Conclave, Hemshankar Dadij, and my mentors, Professor Kaushal Kumar Sharma, School of Social Science, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and Professor Milad Punia, CSRD, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Very good evening to one and all present here, and thank you for joining us at the 3 days World Water Conclave of the year 2022. It is a matter of great privilege for me to speak on this prestigious conclave in its inaugural session held in this beautiful historic city of Varanasi. This city has metamorphosed into a smart city
and become number one city in the world. I extend a very warm welcome to all our esteemed guests present here, and I am personally very thankful to you for having kindly given our university an opportunity to organize this significant event on a very important issue. Rajendra Singh expressed his concern in context of the theme with the Honorable Vice Chancellor of the our university, Colonel Professor Saradev sir, who always take great initiatives pertaining to academic, social, nature conservational, political and international issues for seeking sustainable solutions. Honorable VC sir is willingly agreed to address this challenge through rigorous brainstorming amongst academic and social circles, and to get a shared understanding of global status and causes of drought and flood. To understand the interlinkages between climate change, water and drought floods. To understand the role of nature rejuvenation through decentralized water conservation and rejuvenation of rivers. World Commission on Drought and Flood. These are the aspects which may be implemented to sustain water on our Mother Earth. This conclave is a platform that brings together academia, science, technology, traditional wisdom, civil society, community-led experience from diverse ecologies, streams of knowledge to share pride that delegates from Austria, Bosnia, Canada, Switzerland, Egypt, Lithuania, Nepal, Portugal, Sweden, and from states across India will be participating and sharing their work, experience and knowledge will assemble in the water conclave. In concluding, I once again welcome you all in this conclave. We wish you a very pleasant and memorable stay with us here in Udaipur, India, and hope all discussion will be fruitful and worthwhile for being of our Mother Earth. Thank you. Jai Hind. I request Shri Ali Hitesh Gandharji from Department of Music for the welcome song. Under the joint auspices of Janardhan Nagar, Rajasthan Vidyapeeth, deemed to be university, and Tarun Bharat Sangh, People's World Commission on Drought and Flood. Also, on behalf of the university, I extend a very warm welcome to you all to this land of Maharaja Pratap Shilari,
unwavering devotion of Mirabai, and impeccable loyalty of Sanadai. I would like to put the report on my deep appreciation and thankfulness to Honorable Maharaj Kumar Lakshra Singh Ji of Mewar for his kind patronage, their valuable guidance and support. He addressed His Excellency Ambassador Mohammad Sezir, Embassy of Bosnia and Herzegovina, who has served for 2 decades through the exchange of culture and heritage. I feel honored to welcome worthy son of late Vikram Sarabhai, Chairman, Atomic Energy Commission of India. Padma Shri awardee Shriyot Kartikeya Vikram Sarabhai, who is the founder director of the Center for Environmental Education. The organization of this conclave would not have seen the light of the day. I hope and sincerely believe that he will continue to bless us with his sagacity and scholarly guidance in implementing the policy initiative in this regard. Especially, I would like to take this opportunity of expressing my deep sense of gratitude to our revered Chancellor Professor Balwant Rai Jani Sahab. The city has been consistently and tirelessly continuing its march towards achieving the basic objectives and goals set by the founder by imparting quality education in our institution. At present, we have more than 10,000 students enrolled in different schools, departments, and faculties. Once again, I welcome you all. I may be permitted to make a few observations on theme of the conclave. I am indeed pleased that so many eminent speakers are present here to lead this discussion. I am sure we shall be immensely benefited from their ideas and thoughts. The two Sanskrit phrases, Vasudhaiva Kutumbakam, means the world is one family, and Sarve Bhavantu Sukhino Sarve Santu Nirabhayam, which means may all be at peace and may no one suffer from illness. Represent society, financial institutions to the showcase practices, deliberate on policy issues, and propose solution to surmount challenges in sustainable water management. More specifically, it's about mitigation, adaptation, and resilience of drought and flood through decentralized water conservation. This is not just a sectoral water conclave, because water is about our climate and nature, our energy sources, our health and our food supply. It is about the city living the security of our region and the quality of our society. That water flows to almost all of the sustainable development goals, and sustainable water management will not only contribute to SDG 6 about clean water and sanitation for all, but have significant impact on several other SDGs such as SDG 3 about good health and well-being, SDG 12 about responsible consumption and production, SDG 13 about climate action, SDG 14 about life to the water, the Tattva, which also has an element of water in ancient Indian civilization. The importance of water for life was very well established. Water is considered divine by the Vedas, and it was thought to bring peace, happiness, wealth, long life, and good health. The issues related to different sources of water, its quality and conservation have been repeatedly talked about in Vedic culture. Very interesting to continue sharing knowledge and your expertise during this conclave and also after this conclave ends.
I hope participants and distinguished scholars will discuss all aspects of program and turning over various ideas and thoughts. Discussion and deliberation in the conclave will bring about certain good solutions. People's World Commission on Drought and Flood. And for this, I would request the honorable dignitaries on the dais to please launch the website. On the Drought and Flood. It is an historic moment indeed. The People's World Commission on Drought and Flood was established during the World Water Week in Stockholm, Sweden in September 2022 under the chairmanship of Stockholm Water and Magsaysay awardee Dr. Rajendra Sethi. The main purpose is to reduce risk to life, livelihoods and ecosystems by building community resilience to extreme weather events. People's World Commission on Drought and Flood. Along with the launch of the website, there is one more feather in the cap to adorn this conclave, and that is the release of the book, बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति सामुदायिक विकेंद्रित प्राकृतिक प्रबंधन है युक्ति by Dr. Rajendra Singh, Waterman of India. For the release of this book, I would request the honorable dignitaries on the dais to please release this book. It's climate change, global challenge, local solutions by Dr. Rajendra Singh Ji and Dr. Indira Khurana. This is a release simultaneously of two books, बाढ़ सुखाड़ से मुक्ति सामुदायिक विकेंद्रित प्राकृतिक प्रबंधन है युक्ति by Dr. Rajendra Singh Ji, Waterman of India. And another book is being released, Drought, Flood and Climate Change, Global Challenge, Local Solution by Dr. Rajendra Singh Ji and Dr. Indira Khurana. इंदिरा बहन कहाँ है? जरा इस किताब के बारे में 2 मिनट बता दो। तुमने बहुत मेहनत की है, मेरा तो नाम है बस। Yes, sir. For us to release this book on drought, flood and climate change, global problem and local solutions. And in short, the local solution lies in water conservation for mitigation, adaptation and resilience against drought and flood. PC साहब ने भी कहा था कि the issues of flood and drought are a source of serious concern because over the past few years we are seeing an increase in the intensity, frequency and duration of drought and flood. And also we find that water has a big role to play in climate. It regulates against these droughts and floods. So we felt that it's important to document this work and also to look at what evidence is saying about flood and drought. Because many scientists we speak to say that flood and drought is a natural process. But we looked at what the evidence was saying, and it also showed how climate change contributes to the occurrence of flood and drought. The book also explains the economic impact of climate change and the health impact of climate change and how the solution. Can I say thank you, please? And I look forward to your inputs on this. Thank you. Thank you, ma'am, so much. There is also one more book that is being released, and that is a beginner's guide to problem solving and programming in Python by Dr. Bharat Singh Devra. He is an associate professor in Department of Computer Science and IT. This is a fourth book that he has written. So this is basically a hat trick today in the inaugural ceremony that 3 books have been released, so 3 titles in a cap. To mark this
So the solutions have to be locally worked out. And I'm glad that this book which has come out today talks about global problems and local solutions, which is why it is very important that the problem is certainly global, but unless you give people the ability to solve problems, and that is where this combination of university and NGO becomes extremely important. We had a situation from NABARD. NABARD came and said, we got a scheme, we called it Jal Jeevan Hai, or we want to reach 1 lakh villages in a matter of 3 months. And in every village we want this thing done. Tell us how the communication campaign should be. At that time, in their minds, the campaign meant कि कुछ poster बना के सबको देना है in different languages. I spoke to NABARD and I said, this is not going to work. ये करेंगे, अच्छा लगेगा, inauguration में सब देख लेंगे poster, लेकिन वो poster से कुछ बदलाव नहीं आने वाला, ये personal तो बोलेंगे 1 लाख village में 1-2-3 महीने में कैसे हम कर सकते हैं? I said that leave it to us how we do it. So we trained 8,000 young people, we call them Jalduts. We trained them, and a pair of 2 went into 25 villages each. And they started, they had a program in the morning, they would go in the morning, they would do a survey, they would sit with the SHG groups, they would sit with the panchayat. In the evening there would be a sabha when everyone was invited. And some of the speakers were the best users of water in that village. You will often find that the village itself has some good resource people, but they don't see themselves as resource people. But it is actually a marvelous thing they are doing, and they are speaking the same language which the other people are speaking. So this was done, and in a cascading, as it's called. We all wrote, bank भी वहाँ करती थी कि भी पानी में क्या करना है, community level में क्या करना है, मेरे खेत में क्या करना है. So in India, we have the resources, we have the people, but the whole issue is of combining. In this case, combining with the government, bank. In this case, combining with the university, combining NGOs. How do we bring all this together as a common challenge? जो हमने कोविड में देखा कि nobody saw कि ये boundary कौन सी है, boundary ये करना है तो सबको साथ में मिलकर करना है. जो the challenge is so big. We have a challenge today because we don't think it is strange if we have to drink through a bottle something as something like a bottle of water. So that we don't go into that stage, we have to act very fast. Rajendra Singh ji and I both this time met at the airport in Egypt, coming out of COP. And in the COP 27, you realize that while mitigation is the key thing to be done, even if 100% mitigation is done now, and that verse will affect water in incredible ways. Now India is so vulnerable to the monsoon. Our entire water supply comes to us through this monsoon. Then of course it goes into the rivers, it goes everywhere else. But we are a country which has been blessed with a good monsoon. Even without the good monsoon, we know how to manage it. If you go to Kutch, if you go to Rajasthan areas, they know कि भाई ये problem आएगी तो हम ये कुछ करेंगे. It's time tested, and science, official science may learn a lot from that. So what we are agree with you that we should vote and bring them up. They already know. I think everything what science is having in terms of productivity, they and maybe from global point of view, they have everything in local terms that globally might be a solution in future. So the dealing with water is something that humanity is not taking seriously. That's why we have polluted waters everywhere. My country is very small, and it is best country by water resources. Even our borders are
shaped by rivers. Most of them are maybe cleanest in Europe still, but even River Bosna gave name to the country. Bosna in Bosnia is the same. And Bosna is historical name of my country. Official name nowadays Bosnia and Herzegovina. By the way, this country is like heart shape. So, but problems are this, even this river Bosna is maybe most polluted in Bosnia. It is not big deal, it can be preserved, but it is witnessing that we are careless. With us today. And we are honored that you like the water of our land. And yes, we truly need to deliberate impartially on the global issue of water. I would like to add 2 lines here. My mission in life is not humor and some style. And I'll request our chief guest, Maharaj Kumar Lakshyaraj Singh Vivar, for the special address to the August gathering. Philanthropist, educationist, sports patron, business leader, and हमारे सब बड़े बुजुर्ग जो अन्य जगहों से, अन्य देशों से जो पधारे हैं, मंच पर विराजे, उपस्थित अतिथिगण, अगर हकीकत में पूछें तो थोड़ा मेरे लिए माहौल बहुत ही अटपटा हो गया और उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। खैर, गुरु के सामने वैसे भी शिष्य को जो है वो कम ही बोलना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि पन्ने पे 7 या 8 मिनट लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ सभी विराजे अतिथिगण को इस चीज से सबसे पहले मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि 7 और 8 मिनट के मायने मैं समझता हूँ। इतना पढ़ा लिखा मैं हूँ। लगता है पढ़े लिखे लोग थोड़े कम हंसते हैं, पर इसका आगे ध्यान रखूंगा। जब मैंने फेरिस्त को देखा और मैं यहाँ पर आकर बैठा, उसके तुरंत ही मुझे समझ में आ गया कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है। उसके पहले मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे यहाँ बुलाया गया। यहाँ आने के बाद में जैसे ही मैंने मेरे दाईं ओर और मेरी बाईं ओर देखा, फिर तुरंत प्रभाव से मुझे समझ में आया। इसी वजह से मुझे समझ में आया कि मुझे बीच में भी क्यों बिठाया गया है। क्योंकि जब दोनों तरफ जो है इतने विज्ञात, इतने शिक्षित, इतने ज्ञानी लोग जब आपके साथ में बैठे हों, तो एक अज्ञानी को कैसे मंच पर नहीं बिठाया, तो वो मंच पूरी तरीके से जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। वो कोई काम अगर कर सकता है तो एक शिक्षा का मंदिर कर सकता है और वो एक गुरु कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अज्ञानी लोगों को आज आपने यहाँ बुलाकर सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग भी जो है वो आपकी आगोश में, आपकी गोद में आकर बैठ के हम अपने आप को भी जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और हर युवा को जो आपने सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज के आने वाले समय के अंदर ये देश आज के मौके के ऊपर, आज के चौराहे के ऊपर एक युवाओं का देश है। और जब एक युवा यहाँ पर बैठता है तो केवल वो व्यक्तिगत तौर के ऊपर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का सम्मान नहीं है, इस देश और इस दुनिया के हर युवा को आप सम्मान दे रहे हैं और इस सोच के प्रति जो है अग्रसर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज शायद थोड़ी तालियां कम बजेगी और आज शायद थोड़े ठहाके कम हो सकते हैं, और शायद जो हमारे मीडिया के यहाँ पर बंधुगण जो विराजमान हैं, जो काफी जो हौसला भी रखते हैं, दम भी रखते हैं, उनके कलम इस बात को लिखें या ना लिखें, पर एक विषय जो है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, जिसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और सच्चाई को कहना चाहिए। जब एक शिक्षा का मंदिर इस चीज की अगर आगाज कर सकता है, शुरुआत कर सकता है, तो हमारे जैसे लोग, आपके और हमारे जैसे लोग इस चीज के ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर सकते, और चर्चा के साथ साथ उसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर सकते। शायद मेरे शब्द आपको अजीब लगे, शायद आपको थोड़े से मेरे शब्द अटपटे लगे, उसके लिए मैं आगामी तौर के ऊपर ही आपसे मैं क्षमा मांग लेता हूँ। पर कुछ मुद्दे हैं और अगर ये आज मंच मिला है तो इसके साथ में कहीं ना कहीं इंसाफी करना एक हमारी आज की जरूरत भी है, और इस चीज के ऊपर खुले मन से जो है वो चर्चा भी होनी चाहिए आज, और वो भी इस चीज को लेकर कि हम इस चीज को बचाएं कैसे। जब जब ये देश, जब जब ये दुनिया लड़खड़ाई है, तभी बड़ों ने, बुजुर्गों ने
जो लोग इस चीज के बारे में सक्षम हैं और खास तौर पे ऐसे शिक्षा के जो मंदिर हैं, इन्होंने ही अलग जगाई, इन्होंने ही आवाज उठाई। तो आज पुनः मैं जो है वो धन्यवाद देना चाहता हूं इस यूनिवर्सिटी का, खास तौर पे वीसी साहब का, कि जिन्होंने किसी हिचकिचाहट के बिना केवल इस चीज को उदयपुर तक ही सीमित नहीं रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर उदयपुर के अंदर इस आयोजन को कराया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, बहुत बहुत गौरवान्वित हैं कि आज की तारीख में अगर इस चीज का पैगाम, इस चीज की चीख अगर जाती है तो उस जगह से जाती है जो अपने आप को झीलों की नगरी के नाम से पहचाना जाता है। इंसान इस दुनिया की पहली इकाई है। इंसान से घर बनता है, घर से गली बनती है, गली से मोहल्ला बनता है, मोहल्ले से शहर बनता है, शहर से प्रदेश बनता है, प्रदेश से देश बनता है और देश से दुनिया बनती है। आज जो है कहीं ना कहीं हम लोग केवल इस चीज के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हम चर्चा करते हैं, हम इसके ऊपर कुछ विचार करेंगे, क्योंकि अक्सर कदम जो है वो ठोस ही उठाए जाते हैं, पर वो कदम ठोस इतने होते हैं, इतने ठोस होते हैं, इतने ठोस होते हैं, आगे का कहूं कि मैं पहुंच गया जहां मुझे पहुंचना था। तो यहां पर इसका बिल्कुल ही विपरीत उदाहरण दिया जा रहा है कि यहाँ पर केवल ठोस कदमों के बारे में चर्चा ही नहीं हो जा रही है, पर ठोस कदमों के ऊपर कार्य किया जा रहा है। और जब हम लोग इस सभागार से जब बाहर निकलेंगे, जब यहाँ से हम लोग जब बाहर जाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर, कुछ ना कुछ सीख कर और कुछ ना कुछ तब्दील करने के मन से जो है हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि अगर हमारे को साफ जल, सबसे पहले तो आप शब्दों का चयन देखिए, साफ जल अगर आप बोल देते हैं तो आज के जमाने के अंदर केवल उतना काफी नहीं है, और ये पीवा वाला नहीं है, और हमने पी सका नहीं पी सका, और घटना लाए उन्होंने। आज अगर ये परिस्थिति आई है और आज अगर हमारे को जल खरीदना पड़ रहा है, इसको तरक्की नहीं कहते। इसके अंदर ये देश, ये दुनिया जो है ये आगे नहीं बढ़ी। इत्मीनान से बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे का आराम से, गर्मियों के अंदर एक मौका था जब पेड़ के नीचे बैठने का मौका मिला। एक ताऊ उधर थे, वो कोई अपना हैंडपंप वगैरह चला रहे थे, पानी उधर चल रहा है, नन्हा सा बच्चा, इतना सा होगा, वहां से गुजर रहा था। इस बात के अंदर सारी बातें आ जाती हैं, और घड़ी भी मुझे इशारा कर रही है कि वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो वो भी मुझे इशारा कर रही है। जो इतना सा नन्हा सा बच्चा था, वो ताऊ हैंडपंप पे जो है अपनी पूरी ताकत लगा के पानी को जो है चला रहा था, उनके साथ में और भी लोग थे। वो बच्चा जब वहां से गुजरा, उसने एक ही बात बोली, थाई सारों खत्म करोगा, हमारे वास्ते भी छोड़ोगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो इन चीजों को लेकर हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, हम लोगों को इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा। कदम का उसको जो है वो व्यूज मिल जाते हैं 5 मिलियन के और 7 मिलियन के, और जब मैं बात करता हूं जल की तो उसमें 300 लोग नहीं देखते। इस पाखंड से हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर उठना पड़ेगा। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आज के जमाने के अंदर आवश्यकता हमारे को किस चीज की है, हम लोग क्यों उस चीज की तरफ दौड़ रहे हैं जो हमारे को वापस लाकर कुछ नहीं देने वाला। एक वक्त ऐसा आएगा जहां ये सारी की सारी चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। आज हम पश्चिम की तरफ दौड़ रहे हैं, जहां पर सूरज भी जाकर डूब जाता है, और एक जाएगा ये जग। और आज इस चीज को हमारे को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए ये हम लोगों का धर्म और हमारा कर्तव्य बनता है। मैं एक इस मन से बहुत जिम्मेदाराना तरीके से एक निवेदन और एक गुजारिश करना चाहता हूं उन सब शिक्षा घरों को और शिक्षा मंदिरों को कि केवल यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं, पर स्कूलों के अंदर, इस पाठ्यक्रम के अंदर हमारे जल की शिक्षा को, आज की तारीख के अंदर समय आ चुका है कि इस शिक्षा को हमारे पाठ्यक्रमों के अंदर, स्कूलों के अंदर तब्दील करने का वक्त आ चुका है। आज की तारीख में बच्चों के अंदर, 3 साल, 2 साल, 4 साल के बच्चों के अंदर हमारे को इस चीज की अलग जगाने की जरूरत है। हम इस परिस्थिति को लेकर आए, इसके अलावा हमारे अलावा इस चीज के लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार हम हैं। तो हम इस गलती को किसी और
की भी कोशिश ना करें, पर जब अब वक्त आ चुका है कि हम आखिरी छोर तक पहुंच चुके हैं, अब वक्त ये है कि ये शिक्षा के अंदर, स्कूलों के अंदर, पाठ्यक्रमों के अंदर जो है इसको तब्दील करें। बच्चा बच्चा जन जन इस प्रति जागे। हम लोग हमारे पाइप को, हमारे पानी की टूटियों को नहाते वक्त हम लोग कितना पाखंड करते हैं, जितने पानी की आवश्यकता नहीं उससे 10 गुने पानी की ज्यादा हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। और ये हर व्यक्ति को करना है। आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना कार्य, जो मंच जो हमारे सामने आज विराजमान है, जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के तौर के ऊपर काम कर रहा है, हम इनके काम के ऊपर पानी फेरने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग इस प्रति जो है अगर जिम्मेदार नहीं होंगे, हम लोग अगर इन चीजों के बारे में नहीं जागेंगे, हमारी गाड़ी के ऊपर पानी का पाइप खुला छोड़ देंगे, हम हमारे लॉनों के अंदर पानी का पाइप छोड़ देंगे, कितना आसान है वापस कहीं और हम भूल लियो। मेरे एक बड़े करीबी मित्र की 2 पंक्तियां मेरे जहन में आती है, उसको कहकर अपनी बात को मैं विराम देता हूं और पुनः सब लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ मुझे जगह दी, उसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी साहब का खास तौर के ऊपर कृतज्ञ हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया कि जरा जरा सी बात पर रिश्ते मत तोड़ो, जरा जरा सी बात पर रिश्ते मत तोड़ो, इस 7 अरब की भीड़ में 7 लोग तो जोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, पानी एक ज्वलंत विषय है और आज के परिप्रेक्ष्य में, और हमें अब इस और उदासीन नहीं होना चाहिए। I would request Honorable Vice Chancellor Sir to present the memento to our Chief Guest, Maharaj Kumar Lakshraj Singh Vivad, a free-spirited traveler, a scientific sadhu, a national philosopher who dreams of a world without boundaries, making positive, creative energy. Thank you for this positive, full of energy address. Thank you, sir. तरुण भारत संघ जो है सुखा बार से कैसे मुक्ति मिले, ये काम करने वाला पूरा संगठन है और उनके साथ यूनिवर्सिटी जुड़ रही है। हमारे साथ तिवारी जी है, हमारे साथ लक्ष्यराज जी है और भारत के जल पुरुष की उपाधि जिसको मिली है, ऐसे हमारे राजेंद्र सिंह। तो विश्वविद्यालय में क्या होता है, क्या होना चाहिए, उनकी सोच कहाँ होनी चाहिए, ये सोचने वाले कुलगुरु बहुत कम है। हमारे सारंग देवत जी ऐसे कुलगुरु हैं जो आज की समस्या है, आज का संघर्ष पूरे विश्व में चल रहा है। तो ये संघर्ष से कैसे बचे, हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, हमारी सोच किस दिशा की ओर होनी चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तो कहा है, हमारे गुजरात के बड़े एक कार्तिकेय जी सब कुछ छोड़कर पर्यावरण की संस्था बनाकर एक ऐसा एनजीओ गुजरात में है, बहुत लो प्रोफाइल है। मैं तो 15-20 साल से जानता हूं, उनके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ा हूं, लेकिन कभी भी कहीं भी ऐसी क्रिया होती है वहां वो आ जाते हैं, वरना बहुत क्रियाशील है उनका काम, उनकी विचार। तो ऐसे विद्या पुरुष आज यहाँ आए हैं क्योंकि हमने एक यज्ञ, क्या यज्ञ, किस बात के बारे में, यूनिवर्सिटी को कहां जाना है, उनकी दिशा भी उससे मिलती है। यूनिवर्सिटी को क्या सोचना चाहिए, ये दिशा भी इस कार्यक्रम की वजह से सबको तो एक दिशा दर्शन कार्यक्रम है। जल के बारे में तो हमारे राजेंद्र सिंह जी कहेंगे, लेकिन हम सब सोचे जरा तो गांव में पले हुए, गांव में जल संग्रह कैसे होते थे। हमारे जूनागढ़ में, सोरठ में तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां कुआं न हो, और कोई ऐसा घर नहीं है जहां बारिश का जल संचित करने के लिए टैंक। एक परंपरा थी हमारे घर में भी, गांव में भी जल संग्रह हम कैसे करते थे। हमारे खेतों में छोटी छोटी खेत तालाबी नामक योजना मिली थी हमको,
शिवराज मेहता पढ़े, एक राजगुरु से चल रही है। You are truly a thought activist, institution builder, and a teacher who inspires and motivates us. Your multidisciplinary approach to knowledge can be witnessed in your contribution to society as an educator and academician. बहुत बहुत धन्यवाद sir. And now I will request President of this inaugural ceremony, Dr. Rajendra Singh Ji, for the presidential address. इस संवाद को दिल से दिल के साथ जोड़ने का काम हमारी हिंदी भी, हमारी अंग्रेजी भी, हमारी और दूसरी भाषाओं को भी साथ जोड़ेंगे। मित्रों, मैं मंच से एक माफी मांगते हुए मुझे वैसे तो अच्छी बात है, लिखा है कि समय की पाबंदी नहीं है, पर फिर भी मेरे लिए भी कोई अनुशासन तो है ही, लागू होता ही है। मैं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आप सब जानते हैं कि ये जो हम सब मिले हैं दुनिया से, वो इसलिए मिले हैं कि दुनिया में इस साल लेकिन इस साल ये जो ड्राउट था और फ्लड था, ये यूरोप में था। तो यूरोप के लोग जरा अपने को ज्यादा अकलमंद दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अकलमंदी इस बार भी की। उन्होंने कहा कि इस बार हम ऐसा कमीशन बनाना चाहते हैं जो रिपोर्ट लिखे ही नहीं, जो रिपोर्ट लिखना जानता ही ना हो, केवल काम करना जानता हो। इसलिए भारत को ड्राउट एंड फ्लड पीपल्स वर्ल्ड कमीशन की जिम्मेदारी मिली है और इस जिम्मेदारी को भारत अच्छे से निभाएगा। मैं इस वर्ल्ड वाटर कॉन्क्लेव में ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये जो वर्ल्ड कमीशन बना है, पीपल्स वर्ल्ड ड्राउट एंड फ्लड कमीशन, ये रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं है, ये रिपोर्ट नहीं लिखेगा। ये जिस देश के लोग अपने देश को पानीदार बनाना चाहते हैं, जो अपने देश को ड्राउट एंड फ्लड से बचाना चाहते हैं। मेरे साथ एक इजिप्ट की बहन है, इसका नाम है मोना। ये मोना अपने साइनाई पर्वत को सुखाड़ से बचाने के लिए जब मैं इजिप्ट में था तो मुझे वहां पहाड़ पे ऊपर लेके गई। 6 घंटे ऊंट पे चलना पड़ा, आज भी मेरे पैरों से मैं इतनी दूर नहीं चढ़ सकता था। अपनी कमाई को लगाया है और उस पहाड़ को पानीदार बनाने के लिए, उस इलाके को बाढ़ और सुखाड़ से बचाने के लिए ये वहां लगी है। ये बात केवल अकेली मोना की नहीं है। मैं जानता हूं, जब मैं केनिया में था तो हबसबिन में मोहम्मद आगले ने कहा, राजेंद्र भाई, यदि सरकार पैसा देगी ना देगी हम नहीं जानते, पर हम तुम्हारे साथ ये काम तुमसे सीख कर अपनी पूरी हबसबिन काउंटी को, जो पूरी की पूरी सोमालिया के बॉर्डर से जुड़ी हुई थी, उसको पानीदार बनाने का काम करेंगे। केवल आप हमें सिखा दीजिए कि हम इस वासोनीरा नदी केनिया के ऊपर से शुरू होती है और सीरिया में उसमें सोमालिया में जाके समुद्र में मिलती है। उस पूरी नदी को पानीदार बनाने का काम वहां के लोगों ने शुरू किया। मैं ये 2 उदाहरण केवल इसलिए रख रहा हूं, आज आपके सामने सैकड़ों उदाहरण रख सकता हूं। इस हाउस में मैं जानता हूं बनारस से लेनिन आया हो या फिर ईरान, इराक और पूरी नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाला हमारा दोस्त प्रेम नारायण शर्मा बैठा हो यहाँ, जिसने पूरे उस इलाके में वहां के इलाके को बाढ़ बुखार पिछले एफओ के साथ मिलकर यूएन में रहकर जिस तरह से प्रैक्टिकल काम करके उस इलाके में अद्भुत काम किया। इस हाउस में बहुत लोग बैठे हैं जो सचमुच अपना काम करना जानते हैं, लेकिन ये जो हमारी शिक्षा है, ये शिक्षा हमारी विद्या को हमसे छीनती है। और जब हमारी शिक्षा हमारी विद्या को छीन लेती है, तब हम कलम चला के किताबें लिखना या रिपोर्ट बनाना सीख जाते हैं और फिर हमारी एनर्जी विद्या से हटके शिक्षा की तरफ मूव होती है। और जब हम विद्या से हटके शिक्षा की तरफ मूव होते हैं, तब हम धरती पे काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले आशुतोष जी आपको कह रहा हूं,
मैं जानता हूँ मुझे ये बात कार्तिकेय को नहीं कहनी, क्योंकि उन्होंने अपने भाषण में अपनी बात बहुत सफाई से कि दुनिया में यदि अकाल बाढ़ के वक्त बचना है तो फिर अपने समुदाय से सीखकर उस काम को करना है। बहुत क्लियरली उसने अपने भाषण में कहा। लेकिन तुम्हारे भाषण में ये बात नहीं थी। तुम्हारे भाषण में पूरी मटेरियल की जो साइंस है, उसी मटेरियल साइंस में तुम अभी भी फंसे हो, जबकि तुम क्रिएटर हो, उस कमीशन के क्रिएटर के पार्ट हो। फिर भी इसलिए मुझे इस सम्मेलन में आज केवल 2-3 जरूरी खास बातें कहनी है, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये कोई हमारा फॉर्मल सम्मेलन नहीं है। इस सम्मेलन को किसी ने किसी प्रोजेक्ट से स्पॉन्सर किया हो, बिल्कुल नहीं। हमारे चांसलर और हमारे वाइस चांसलर और इस यूनिवर्सिटी के सारे टीचर और विद्यार्थी, इन लोगों का योगदान है, जिसके कारण ये घरेलू तरह से सबको, हम जितने मेवाड़ के लोग मनवार करना जानते हैं, हम मनवार भी करेंगे, हम सम्मान भी करेंगे। जितना हमारे मेवाड़ियों का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसके सम्मान में सब कुछ करेंगे। पर हम कहना ये चाहते हैं कि यदि हमें 21वीं शताब्दी में इस दुनिया को फिर से ये करके दिखाना है कि हम बाढ़ और सुखाड़ मुक्ति की युक्ति जानते हैं, और ये बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति सबसे पहले राजा जनक ने हमें सिखाई थी। राजा जनक जब सुखाड़ के वक्त में बुरी तरह से पूरा अयोध्या सूखे में था, तो वहां की प्रजा ने जाके राजा जनक को कहा, राजन तुम अपनी सुंदर महारानी के प्यार में डूब गए हो और महल से बाहर नहीं निकलते हो। ठीक है, महारानी को प्यार करना चाहिए, महारानी है, लेकिन राजा केवल एक से प्यार नहीं कर सकता। हम जन सामान्य एक से प्यार कर सकते हैं, लेकिन राजा को यह इजाजत नहीं है कि वो हल चला के पसीना निकाल के, इसको कहते हैं अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ द ड्राउट क्राइसिस। ये जो पसीना है, जब हम इस नेचर से जितना लेते हैं उतना अपनी मेहनत और पसीने से देने लगते हैं, फिर इस धरती पर प्रलय का प्रपंच नहीं चलता। प्रलय का प्रपंच तभी तक चलता है जब तक हम इस प्रकृति से अपने लेने और देने के रास्तों को प्यार से निभाते नहीं हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सुखाड़ सिखाया राजा जनक के जमाने में, जब महाकाल पड़ा था सूखे का, और राजा जनक ने अपनी महारानी को महल से निकाल के दोनों ने मिलकर हल चलाया और पसीना आया और पसीने की बूंदें धरती पर पड़ी, हरियाली आई, हरियाली से बादलों को फिर एक बरसने का, एक वातावरण का सृजन हुआ। द्वापर काल में जब कृष्ण तरुण थे, युवा भी नहीं हुए थे, तब कंस का राज था मथुरा में, और कंस के राज से इंद्र बहुत त्रस्त था, बहुत दुखी था। सबसे ज्यादा दुखी था इंद्र। तो इंद्र को गुस्सा आया, तो इंद्र ने कहा कि ये बादल तो मेरे कब्जे में है, तो मैं इन बादलों को टकरा देता हूं। तो इंद्र ने दोनों तरफ के बादलों को आपस में टकरा दिया, भयानक बारिश हुई, तो वृंदावन और द्वारिका तक बाढ़ आई। तो कृष्ण ने क्या किया? लोग कृष्ण के पास गए और कहा कि भाई तुम्हारे दोस्त इंद्र ने यहां बाढ़ ला दी, हम तो सब तबाह हो गए। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे दोस्त को यह मालूम नहीं था कि ये बाढ़ लाने से मेरी गरीब जनता तबाह होगी। उसने तो उस दुष्ट कंस को सबक सिखाने के लिए बादलों को टकराया था कि बादल आपस में टकरा जाएंगे तो कंस को जरा अकल ठिकाने पर आ जाएगी। पर ये तो हमारी प्रजा त्रस्त हो रही है, तो ऐसा करो सब मिलकर गोवर्धन पर्वत पर चलो। भगवान, एक भी गाय नहीं मरी और एक भी ग्वाला नहीं मरा। ये था एडेप्टेशन ऑफ द फ्लड। फ्लड के साथ हम कैसे कॉप करके उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग है भगवान, ये कंट्रोल करना सिखाती है। और जब हमारे मन में कंट्रोल करने का घमंड आता है तो हमारे प्यार के रिश्ते टूट जाते हैं, और जब प्यार के रिश्ते टूट जाते हैं फिर प्रकृति का क्रोध बढ़ता है। तो हम ये जो प्रकृति का क्रोध है
जिसको हम ड्राउट एंड फ्लड कहते हैं, इसके समाधान के रास्ते ना केवल भारत में, पूरी दुनिया में करने के लिए तैयार है। मैं आज कुछ नाम घोषित करना चाहता हूं। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, कुछ काम करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जरा कागज पेन पे लिख लेना। श्री एस सारंग देवोत, वो इस यूनिवर्सिटी के कुलगुरु हैं। सबसे पहले तो ये जो वर्ल्ड कमीशन ऑन ड्राउट एंड फ्लड बना है, हमारे पहले कमिश्नर होंगे श्री सारंग देवोत। मैं अपनी पगड़ी श्री सारंग देवोत जी को पहनाना चाहता हूँ। मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं, तो मैं ये पगड़ी आपको सागर समर्पित करता हूँ। पहले कमिश्नर क्यों होंगे? क्योंकि ये पहले व्यक्ति वो हैं जो इस शिक्षा में विद्या को दोबारा से लाना चाहते हैं। ये वो कुलगुरु हैं जो केवल शिक्षा पर भरोसा नहीं करते, इनके मन में शिक्षा को विद्या में बदलने की खोज करने की युक्ति में ये लगे हैं। इसलिए मैंने अपना साफा उनको सादर भेंट किया। आपको स्वीकार है ना? बिल्कुल। चलिए जरा एक बार ताली बजा दो यार। दूसरे व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे मेवाड़ से जाके, जिन्होंने जियो हाइड्रो साइंस को, वहां की ऑस्ट्रेलिया की धरती के पेट की सारी नसों को समझा, वहां के एक्यूफर, वहां के फ्रैक्चर्स, और वहां बहुत काम किया। और उस काम के साथ साथ उन्होंने भारत में भी बहुत, गुजरात में बहुत अद्भुत काम उन्होंने किया था। ऐसे हैं बसंत माहेश्वरी जी। मैं चाहूंगा कि बसंत माहेश्वरी जी जरा आगे आ जाएं और ये हाउस आपको देख ले। मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर बसंत माहेश्वरी जी से निवेदन करूंगा कि ये आज जो हाउस है आप सबसे प्रार्थना करता है, और मैं अपने दोस्त की पगड़ी उधार ले लेता हूँ और मैं अपने दोस्त की पगड़ी उधार, क्योंकि मैं पहना, ये देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तीसरे होंगे कार्तिकेय सारा भाई। कार्तिकेय सारा भाई कच्छ को, पूरे को, गुजरात को समझते हैं और वो राजस्थान को भी समझते हैं। तो ये जो कच्छ वाला इलाका है, ये एक एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन है, और वो जो एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन है, इनके पास उसकी समझ भी है और देश और दुनिया की भी समझ है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 92 में रियो डी जनेरियो में पहला एक तरह से कोप हुआ था रियो डी जनेरियो में, तब हमारे दोस्त कार्तिकेय भाई ने शिक्षा में हम किस तरह से अपने समाज की समझ को बढ़ाएं, विद्या को एक तरह से आगे लेके आए, तब से लेके अभी तक वो उस काम को बराबर जारी रखे हुए हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कितना पुराना है। मेरा उनका रिश्ता बहुत पुराना है और मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, और ये पगड़ी मैं अपने एक बार फिर पहनाने के लिए नहीं आ रही है तो अच्छा, मेरी ये चद्दर तो मेरी चद्दर तो ये है ही यार। इसको ये जो है कार्तिकेय सारा भाई, उनकी पगड़ी उनको काम आ जाएगी, और रहने तो इसको अभी ये दे देते हैं। तो हमारे तीसरे कमिश्नर हुए कार्तिकेय सारा भाई। मैं चौथा लेके चलता हूं आपको इजिप्ट। मैं जानता हूं वो उम्र में कम है। To her, we are requesting to for the macroclimatic zone Egypt. She do the work as a commissioner on that region. You understand? Very good. Thank you very much. मैं अब निवेदन कर रहा हूं, इधर इनके लिए पूरा ड्राउट एंड फ्लड कमीशन
कमीशन खुला है, क्योंकि जो आदमी बिना कहे अपना काम करता रहता है उसके लिए सारे रास्ते हमें खोल के रखने होते हैं। इसलिए इनके लिए रास्ता खोल के रखा है। ये जो ड्राउट एंड फ्लड कमीशन है, दो शब्द बोल कल बात करें, चलिए ठीक है। ये जो ड्राउट एंड फ्लड कमीशन है, इसके 3 हिस्से हैं। एक है कमीशन, कमीशन में दुनिया के जितने भी मैक्रो एग्रो इकोलॉजिकल असेंबली का नंबर अभी हमने बहुत निर्धारित नहीं किया है, उसके लिए हमने खुला रखा है, क्योंकि जो भी संगठन, जो भी समुदाय, जो भी कम्युनिटी उस काम को कर रही है, उस कम्युनिटी को हम ये मौका देना चाहते हैं कि तुम ग्लोबल लर्निंग फॉर द मिटिगेशन ऑफ द ड्राउट एंड फ्लड, उसके लिए तुम्हें एक मंच है, एक मौका है। उस मंच से तुम सीख सकते हो और उस मंच को जो तुम्हारे पास है वो दे सकते हो, सिखा सकते हो। इसलिए ये जो काउंसिल ऑफ एडवाइजरी है, उसका नंबर हमने अभी तक कोई बाउंड नहीं किया। कोई ये नहीं कहा कि ये 150 होंगे, कि जितने देश हैं उतने होंगे। ऐसा जानता हूं कि थोड़ी जरा अड़चने होती हैं, पर वो जरूर अपनी तरफ से अपने मन की बात, अपने दिल की बात हमें कहेंगे कि वो इस कमिश्नर में, इस कमिश्नरी में, कमिश्नरी ऑफ ड्राउट एंड फ्लड, उसमें उनका रोल वो कैसे देखते हैं। तो मैं जरा 1 मिनट के लिए माइक देता हूं और तुम अपना रोल सबको बता दो, कह दो कि देखो हम भले ही ईडी के कमिश्नर हैं, पर ये पानी की कमिश्नरी हमें कैसी लगती है वो बता दो। भाई जी का आदेश है, आदेश टाल नहीं सकता। भाई जी 3 दिन हमारे जलगांव में, जलगांव तहसील है, वहाँ आए थे और काम देखा है। भाई जी ने जो 5 पाटिल, 5 गांव की जिम्मेदारी लेने वाला आदमी, उसको 5 पाटिल का नामा विधान दिया है और एक गाना भी सुपुर्द किया था हमने। उसका थीम सॉन्ग हमारे मिशन 500 करोड़ लीटर्स को दिया है। धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, तो कभी मौका मिलेगा तो पूरा गाऊंगा। भाई जी की आज्ञा है और आशीर्वाद है, इसको स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जरा मैं इसके नाम की जरूर ताली बजा दूं, नहीं तो लोग कहते हैं अरे यार मैं सरकार में हूँ, मुझे जरा दिक्कत होगी, सरकार पूछेगी कि तुम उसमें कमिश्नर कैसे हो गए। महाराज साहब बजट में क्या चल रहा है? हाँ मैं तो हुई ना, मैं तो हुई। तो ये जो तीनों भाई हैं, ये तीनों हमारी जो जनरल असेंबली है, मिशन की जो जनरल असेंबली है उसके मेंबर हैं, क्योंकि ये तीनों जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। एक हिमालय में काम करते हैं, ये हिमालय में काम करते हैं, पूरी गंगा की ऊपर से लेकर नीचे तक यात्रा की है सुरेश भाई। ये अर्जुन पांडे हैं। अर्जुन पांडे जी प्रोफेसर थे ज्योग्राफी के, लेकिन इन्होंने जल साक्षरता की एक बड़ी मुहिम चलाई है मध्य भारत में। और ये हमारे मनोहर मानव हैं जो बिहार में है। साइन तू भी आ जाना यार, फिर पीछे रह जाएगा, एक ही साथ पूरा कर देते हैं। साइन जो है मूलतः बिहार के हैं, लेकिन इस वक्त मिलकर पूरी जी जान लगा के वहाँ पानी के काम में हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये चारों साथी हमारे जनरल असेंबली के मेंबर हैं, 4 साथी। जरा जोर से ताली बजा दीजिए। मैं अब कुछ सिंबॉलिक ले रहा हूं क्योंकि मुझे कल और साथियों को लेना है। मैं चाह रहा था, 1 मिनट रुको जरा। तो ये जो 5 साथी हैं हमारे, ये हमारी जो ये कमीशन है, इस कमीशन के जनरल असेंबली के सदस्य हैं। जरा 5 को स्वीकार कर लीजिए और नाम की ताली बजा दीजिए। आगे हम लोग आगे करेंगे, बहुत बढ़िया। और कल फिर आपकी बातें कल सुनेंगे। मैं अब कुछ साथियों को बुलाना चाहता हूं सिंबॉलिकली, जो हमारी एडवाइजरी काउंसिल में हमारे साथी होंगे। मैं अभी भारत के लोगों को बुला रहा हूं, दुनिया के बाहर के लोगों को बाद में बुलाऊंगा। सबसे पहले मैं दीपक पर्वतियार को बुलाता हूं। दीपक पर्वतियार एक यूएन की एक मैगजीन हमारे खरे साथी के तौर पर आगे निकलेंगे। मैं चाहूंगा प्रोफेसर स्नेहल दौंडे। स्नेहल दौंडे बंबई में काम करती है, पर हमारे साथ पिछले 10 सालों से नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, नदियों के लिए लड़ रही हैं। और बहुत अब कॉलेज की, एक बड़े कॉलेज की
की बम्बई के प्रिंसिपल होते हुए भी रात दिन उस काम में लगी है, आज देखता है कि ये उसका काम देखता है। ये आदमी पिछले 8 महीनों से पूरे जयपुर जिले के सारे स्कूलों में जाके पानी, जवानी और किसानी, इन तीनों को संरक्षित करने की चेतना जगाने का काम कॉलेज और स्कूल के बच्चों के साथ कर रहा है। और संजय पूरा बुंदेलखंड में पिछले 25-26 सालों से अद्भुत काम कर रहा है। और मनीष को तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मनीष को मैं हाथ में माइक देता हूँ और 2 शब्द यदि माइक से बोल देगा कि भाई तू कैसे देख रहा है इस ड्राउट एंड फ्लड कमीशन को, कैसे आगे जाना चाहिए, तो अपनी बात जरा अंग्रेजी में, हिंदी में जिसमें कह रही हूँ एक कहानी है छोटा सा। So if your tap is overflowing, अगर पानी नल से टपक रहा है, you don't just go and wipe it up, you have to turn off the tap. तो ये बहुत बड़ा अभी हमको है कि इसको जो कमीशन का है, इसका है कि जो समस्या के जड़ तक हमको जाना पड़ेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, जब तक हम ये पूरा जो हम अभी जो खड्डे में फंसे हुए हैं उसका जड़ पकड़ के तभी निकलेंगे। तो इसके साथ मैं पूरा तैयार हूँ। और आई थिंक एक तो आपने बोला इसका जड़, जो विद्या का जो जड़ है, विद्या को पूरा देश और दुनिया में वापस मानना है। और दूसरा जो मैं कहता हूँ, एक ही अभी भगवान है, सब हिंदुइज्म, जैनिज्म, इस्लाम सब खत्म हो गया, पैसे का भगवान है। तो उस पैसे जो बहुत लोगों ने बात किया, उसको हमको वापस अपने सही जगह पे जाना पड़ेगा। और जो असली भगवान भाई साहब बताएंगे कौन सा है, उसको आगे बढ़ाना है। भारत दुनिया का गुरु जब तक था जब तक वो अपने असली भगवान को पहचानता था। और असली भगवान शब्द जो है वो संस्कृत और हिंदी में एक ही है, दोनों भाषाओं में। और तमिल में भी उसी भगवान को जानते हैं। वो कौन सा भगवान है? भय से भूमि, गै से गगन, वै से वायु, ओ से अग्नि और न से नीर। ये जो पंच महाभूत है, यही हमारा असली भगवान है। और जब तक इस असली भगवान को हम पहचानते थे, तब तक भारतीय लोग नीर नारी नदी को नारायण मानते थे। नीर नारी नदी को नारायण मानने वाला भारत कभी भी पानी के व्यापार की बात नहीं सोच सकता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज ना भगवान की समझ रही और ना नीर नारी नदी को नारायण मानने की बुद्धि रही। इसलिए हमें दोबारा से उसी विद्या पे आना पड़ेगा। इस उत्कृष्ट, ऊर्जावान, सारगर्भित, सरल, सहज और दिल को छूने वाले उद्बोधन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका आभार। आपको आज हम अपने बीच में पाकर कृतज्ञ हैं। It's a matter to great honor and pleasure for me as registrar of the university to propose a vote of thanks to all for your gracious presence, participation and highly valuable contribution to make this conclave a memorable success. हमारा राजस्थान विद्यापीठ में आज हो रहा है और ये हमारा जो पीपल्स वर्ल्ड कमीशन स्वीडन और हमारे तरुण भारत महासंघ और जनार्दन नागर राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के तत्वाधान में संपन्न होने जा रहा है। 3 दिन का ये पूरा एक कॉन्क्लेव हो रहा है। आज देखिए, इसका बहुत बड़ा एक अच्छा विषय है कि सूखा और बाढ़, ये हम हर साल इस बहुत बड़ी समस्या से जूझते हैं। जो बाढ़ आती है तो बहुत सा जो पानी है, आप देखिए बहुत सी जो मिट्टी है वो हमारे जो छोटे छोटे तालाब हैं उसमें देखिए 10% ज़्यादा मिट्टी उसमें जमा हो जाती है और करीब 34% मिट्टी हमारे समुद्र में चली जाती है। तो जो जिस तरह से पेड़ कटाई हो रही है और जिस तरह से एक बाढ़ को रोका जा सकता है, वो सब चीज़ें आज और हम सब देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जब सूखा होता है और सूखा में जिस तरह से जो पानी के अभाव में जो लोग पशु और पक्षी जो एक उनका जो जिस तरह से वो बढ़ जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। और जहाँ तक पानी की बात करते हैं तो भारत में फ्रेश वाटर का 4% है, जबकि विश्व की आबादी का यहाँ से 17% 70% निवास करते हैं।
आप देखिए कि ऐसे में भारत का मतलब 4 टाइम्स पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। पहले हम सोच रहे थे कि शायद 2030 के बाद पानी की किल्लत हम करेंगे, देखेंगे, लेकिन अब आंकड़े नहीं बल्कि सिचुएशन ये बता रही हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे 2025 में हमें फेस करनी पड़ेगी। तो हमारे विश्वविद्यालय ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया और हमने सोचा कि हम कितने भी एकेडमिक और कितनी भी हम वैज्ञानिक और कितनी भी इनोवेशन की बात करें वो अपनी जगह हैं, लेकिन इस प्रकृति को किस तरह संवारें, क्योंकि प्रकृति हमारे शरीर है, ये पंचमहाभूतों से बना है, पंच तत्व हम कहते हैं। हम पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि और सभी चीज़ें इसमें, जल सभी इसमें समाहित हैं। और इसी में आप देखिए कि जल जो है हमारे ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें, जल की जो महत्ता है सभी बताई गई। आप देखिए नदियों को हमारे पूर्वज कितने एक साइंटिफिक वे हमारे सामने रखते थे। नदियों की यहाँ पूजा की जाती है, वृक्षों की पूजा की जाती है, ये सब हम हमारे आर्ष ग्रंथों पढ़ते हैं और आए दिन हम अपनी स्पीचेज में कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं अब ये ज़रूरत है कि हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे जो पूरे हमारे जो एक सनातन जो संस्कृति है जिसमें हमारे कुओं, नदियों, पानी की सबकी पूजा की जाती है और पानी है, जल ही है, जीवन है, ये सब बातें हम देख रहे हैं। हम जब जो गर्मी के 2 महीने होते हैं बहुत ही किल्लत होती है, हम पानी की महत्ता समझते हैं, लेकिन बारिश के बाद पुनः भूल जाते हैं। तो हमें एक इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को बनाने के लिए, और वैसे यूनाइटेड नेशन की बात करें तो 2030 तक संपूर्ण देश के लिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सामने रखे हैं और उसमें जो गोल नंबर 6 हैं, मतलब सतत विकास की जो बात करते हैं, उसमें बहुत ही क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, बहुत ही एक शुद्ध जल हमारी मानव जाति को मिले। यदि इस मानव जाति को बचाना है तो हमें इन सभी प्रकृति की जो बहुत अद्भुत हमें एक नेचर दिया, उस नेचर के संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।